بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے بیچ میں میں گرامر کے چند ضروری قواعد لے کر آیا ہوں۔ تشریح کے جو سوالات آتے ہیں تو اس کے اندر گرامر کا حصہ بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، اور اگر آپ کے گرامر حل ہو، جس کو حل کرنے میں آپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، بس تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو تقریباً آپ کے 30% سوالات بہت آسانی کے ساتھ اور بہت جلد حل ہو سکتے ہیں۔ تو جو گرامر ہے، اس کی جو چند ضروری اصطلاحات ہیں، میں اس کو آپ کے درمیان لے کر آیا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم لفظ کے تعلق سے بات کریں گے۔ لفظ کس کو کہتے ہیں؟ لفظ یہ لام، فا اور ظا، ٹھیک ہے، یہ لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، لفظ کے معنی آتے ہیں پھینکنا۔ ہمارے منہ سے جو آواز نکلتی ہے، دراصل ایک ہوا ہے جس کو ہم اندر سے باہر پھینک رہے ہیں۔ تو یہ آواز جو ہے، یہی دراصل لفظ کہلاتا ہے۔ تو منہ سے نکلنے والی آواز کو لفظ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، لفظ دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ ہمارے منہ سے آواز نکلتی ہے تو کبھی اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کرسی کہا تو ہم کو کرسی سے ایک چیز سمجھ میں آئی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی ہمارے منہ سے آواز نکلتی ہے، لفظ نکلتا ہے، لیکن اس کا کوئی مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں چائے وائے، تو چائے، اس کا ایک مطلب تو سمجھ میں آیا، چائے ایک چیز کو کہتے ہیں، اور وائے، اس کا کوئی مطلب نہیں سمجھ میں آیا، لیکن ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، وہ لفظ جس کا ہم کو مطلب سمجھ میں آ گیا، یعنی چائے، اس کو ہم کہیں گے لفظ موضوع۔ میم، واو، زاد، واو اور عین، لفظ موضوع، ٹھیک ہے۔ تو وہ لفظ جس کا مطلب ہمیں سمجھ میں آ جائے تو وہ لفظ موضوع کہلاتا ہے، اور لفظ موضوع کا ہی نام جو ہے کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کلمہ کا دوسرا نام کیا ہوا؟ لفظ موضوع۔ اب آپ سمجھے کہ سوال پوچھنے کا انداز کیا ہوگا۔ پوچھا جائے گا کہ لفظ موضوع کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ۔ جب پوچھا جائے گا کہ کلمہ کس کو کہتے ہیں، تو ایسا لفظ جس سے کوئی معنی سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے نا؟ کبھی سوال اس طریقے سے کیا جائے گا، وہ لفظ جس سے کوئی معنی سمجھ میں آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جواب ہوگا اس کا کلمہ۔ آپشن میں اگر کلمہ ہو تو کلمہ، اور اگر آپشن میں لفظ موضوع ہو تو لفظ موضوع، ٹھیک ہے۔ اب یہ بنیادی چیز تھی۔ اب آگے دیکھیے، تو دیکھیے، لفظ کی دو قسمیں، لفظ موضوع جس کا دوسرا نام کلمہ، اور لفظ کی جو دوسری قسم ہے وہ مہمل ہے نا، موضوع اور مہمل ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، کلمہ ایسا لفظ جس کے کچھ معنی ہوں اسے کلمہ کہتے ہیں۔ مثلا بات، پانی، کھانا، جھوٹ۔ تو اس میں ہر ایک لفظ پر غور کریں۔ بات، اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، ہم کہتے ہیں نا وہ دونوں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پانی ظاہر ہے ایک پینے کی چیز ہے، کھانا ایک کام ہے، جھوٹ یہ بھی ایک چیز کا نام ہے۔ محمل ایسا لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہو اسے محمل کہتے ہیں۔ مثلا بات چیت۔ اب دیکھیں یہاں پر بات، اس کا تو ایک مطلب ہے، لیکن جس کے اوپر نشان لگایا گیا ہے چیت، اگر ہم آپ سے کہیں صرف چیت، وہ دونوں چیت کر رہے تھے، تو اس کا کوئی مطلب نہیں سمجھ میں آئے گا، ہے نا۔
लेकिन हम चीत का लफ्ज जो है बात के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, बात इसका मतलब समझ में आया। तो ये लफ्ज मौजू हुआ, ये कलमा हुआ, और चीत इसका कोई मतलब नहीं है ना। तो ये लफ्ज गैर मौजू हुआ, इसी को लफ्ज मोहमल कहते हैं। इसी तरीके से देखिए, पानी वानी, आप भी हल करने की कोशिश करें। पानी लफ्ज मौजू और वानी लफ्ज मोहम्मद। आप एक कॉपी ले लें और कलम ले लें और लफ्ज मौजू और लफ्ज मोहम्मद को अलग करने की कोशिश करें। खाना वाना, झूठ मूठ, इसमें अब आप पहचानने की कोशिश करें कौन लफ्ज मौजू है और कौन लफ्ज गैर मौजू है, यानी लफ्ज मोहम्मद है। देखिए, ऊपर की मिसालों में चीत, वानी, वाना और मूठ, ठीक है, ये वगैरह मुहम्मल अल्फाज हैं जिनके कोई माना नहीं। अब आप देखें, एक काम मिला है आपको। ये जुमले आपको पढ़ने हैं और इसमें से मुहम्मल अल्फाज आपको अलग करना है। ठीक है ना। रोटी वोटी खा लें, पानी वानी पी लें, तुम टाल मटोल मत करो, हमने खूब खाना वाना खाया, आज फातिमा और अलीजे ने बातचीत की, बच्चा झूठ मूठ रोया। तो आपका काम है लफ्ज मुहम्मल को अलग करना है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और उसके अंदर आपको हल करवाने की कोशिश करूंगा। अब देखें, लफ्ज मौजू जिसका माना समझ में आ रहा था, ठीक है, उसकी तीन किस्में होती हैं। उसी को इन्होंने कहा है कलीमा की अक़साम। सवाल होता है कलीमा की कितनी किस्में हैं, ठीक है। तो उसकी तीन किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। जिस लफ्ज का कोई मतलब हो उसे कलीमा कहते हैं। उसकी मुंदरजा झैल तीन अक़साम है। मुंदरजा झैल माना नीचे लिखा हुआ, तो इसकी तीन किस्में हैं। इस्म, देखिए, हम जब बात करते हैं या कहीं पर भी उर्दू के अंदर कुछ भी लिखा होता है, तो वो तीन चीजों में से कोई एक चीज होती है। वो तीन चीजों में से कोई एक चीज होती है। या तो वो किसी चीज का नाम होता है, या देखिए वो कोई काम होता है, या एक तीसरी चीज होती है जिसके जरिए हम अपनी बात को मुकम्मल करने का सहारा लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहेंगे तुम या ये कहो हमद हामिद कलम से लिखता है। तो हामिद ये एक चीज का नाम हो गया, कलम ये भी एक चीज का नाम हो गया, लिखता है ये एक काम हो गया, और से इसके जरिए हमने अपनी बात को मुकम्मल करने में सहारा लिया। तो से जो होता है वो हर्फ होता है। हर्फ की बात नीचे आ रही है, तो मैं उसमें आपको और बतलाऊंगा। तो देखिए, इस्म वो कलीमा जो किसी शख्स, चीज या जगह का नाम हो, उसे इस्म कहते हैं। मसलन फातिमा एक शख्स का नाम है, मेज एक चीज का नाम है, कलम एक जगह का नाम है, ये एक चीज का नाम है, लाहौर एक जगह का नाम है, और शहर है ये जगह का नाम है। फिर वो कलीमा जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो उसे फेल कहते हैं। जैसे तोड़ा, है ना, इससे एक काम के होने का पता लगा। खाया, इससे भी एक काम के करने का पता लगा। गाया, है ना, इससे भी एक काम के करने का पता लगा। हम कहते हैं ना कि हामिद खाना खाया, हामिद गाना गाया, हामिद दूध पिया। तो पिया, इससे भी हमको एक काम के होने का पता लग रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर फेल के बारे में क्या बतलाया है कि उससे किसी काम का करना या होना पता चलता है। लेकिन अगर सिर्फ काम का पता चले, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं लिखना, ठीक है, तो ये काम का नाम हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये फेल नहीं हुआ। अगर हमको लिखने का पता चले, मिसाल के तौर पर हम कहेंगे लिखा, हामिद लिखा, तो अब लिखा ये फेल है, लेकिन सिर्फ लिखना है ना, ये फेल नहीं है। इससे काम के होने का पता नहीं चल रहा, बल्कि ये एक काम के नाम का पता चल रहा है। ठीक है। अब देखिए, हर्फ, कलीमा की ये तीसरी किस्म है। कलीमा वो कलीमा या लफ्ज जो न इसम हो न फेल हो, बल्कि इन दोनों को मिलाने के लिए इस्तेमाल हो, हर्फ कहलाता है। ठीक है।
अब इसको मैं एक सरसरी अंदाज में देता हूँ। तो किसी भी चीज का नाम होगा तो वो इसम कहलाएगा, ठीक है। और अगर उससे किसी काम का होना या करना मालूम हो रहा होगा तो वो फेल होगा, ठीक है। और हर्फ जो होता है ऐसा कलीमा होता है जिसको अकेला इस्तेमाल किया जाए तो उसका कुछ भी मतलब समझ में ना आए। जैसे देखिए, मैंने एक मिसाल दिया था, हामिद कलम से लिखता है। तो अगर मैं सिर्फ हामिद कहूँ तो उससे एक चीज समझ में आती है, कलम कहूँ एक चीज समझ में आती है, लिखता है इससे भी एक चीज समझ में आती है। लेकिन सिर्फ से कहूँ, है ना, इससे कोई चीज समझ में नहीं आएगी। तो हर्फ जो होता है ऐसा लफ्ज होता है जिसको अकेला इस्तेमाल किया जाए तो उसका कोई भी मतलब समझ में नहीं आता है। जैसे देखें, का, के, की, ने, पर, को, है ना। तो ये सब जो है हर्फ है। अब देखिए, जुमलों में इस्म, फेल और हर्फ की वजाहत का चार्ट। लड़की ने आम खाया, है ना। तो देखें, लड़की जो है एक चीज का नाम है, तो ये कौन से चार्ट में जाएगा? इस्म वाले। तो देखिए, ने, इसका कोई मतलब समझ में आ रहा है? नहीं, तो ये हर्फ में जाएगा। आम एक चीज का नाम है तो ये इसम में जाएगा, ठीक है। खाया, इससे एक काम के होने का पता चल रहा है तो ये फेल में जाएगा। इसी तरीके से आप सबको हल करने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए, एक और देख लीजिए, बच्चा नहर में डूब गया। तो बच्चा एक चीज का नाम है, तो बच्चा जो होगा इसम के अंदर होगा। नहर, है ना, एक चीज का नाम है, तो ये भी इसम के अंदर जाएगा। में, है ना, ये हर्फ है, क्योंकि अकेला अगर में बोले तो इससे कोई चीज समझ में नहीं आएगी, तो ये हर्फ में जाएगा। डूब गया, इससे एक काम के होने का पता चल रहा है तो ये फेल के अंदर जाएगा। आगे देखें, कलीमा किसको कहते हैं? तो वो लफ्ज जिसका कोई माना हो, कलीमा कहलाता है। कलीमा की कोई तीन मिसालें हैं, ठीक है ना। तो आप किसी चीज का नाम ले सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हामिद, ठीक है। आप कोई काम बतला सकते हैं, जैसे खाया, खा रहा है। और आप कोई हर्फ बतला सकते हैं, जैसे में, से, को वगैरह। मुहम्मल किसे कहते हैं? तो मुहम्मल ऐसा लफ्ज जिसका कोई माना ना हो, ठीक है। जैसे बातचीत में चीत, खाना वाना में खाना, चाय वाय में वाय। कलीमा की कितनी अकसाम होती हैं? तो कलीमा की तीन अकसाम होती हैं, इस्म, फेल, हर्फ। इस्म किसे कहते हैं? इस्म किसी चीज के नाम को कहते हैं, किसी चीज के, शख्स के, मतलब कोई भी तरीके का नाम हो। फेल किसे कहते हैं? तो फेल ऐसा कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना पता चलता है। जैसे हवा चल रही है, तो चल रही है, एक काम हो रहा है तो ये फेल है। बारिश हुई थी, तो बारिश हुई थी, एक काम हुआ था तो ये फेल है। हर्फ किसे कहते हैं? तो हर्फ जिसके सहारे हम बातचीत को मुकम्मल करते हैं। और हर्फ ऐसा कलिमा है जिसका माना अकेले समझ में ना आवे। आगे देखें, आप इसको हल करने की कोशिश करेंगे तो मश्क हो जाएगी। रजा, हंसा, है ना, इसके अंदर कौन इसम है, कौन फेल है। बिल्ली भागी, अहमद दौड़ा। तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह उसका फायदा होगा, ठीक है। ये पूरा चार्ट है, आप इसको नोट करें और इसको हल करने की कोशिश करें। अगले पार्ट में हम लोग जुमला को समझने की कोशिश करेंगे।